Hello class 9th. This video is for a screw gauge. A screw gauge is used to measure a minor accurate measurement than in comparison to the vernier caliper. That means it can take a more accurate reading in comparison to the vernier caliper. Why it takes a more accurate reading? Because it has a more number of subdivisions in their scale. Got it? Suppose it has vernier scale has 10 divisions, so circular scale is having 100 divisions on their subscale. Got it? So this figure will I will describe you. Here are some main parts are there mentioned, so I will describe you about that. Firstly, anvil. Anvil that is used in that particular micrometer is also known as screw gauge. Anvil is a fixed part, and spindle that is movable. When you will move this ratches or knob, इसको हम लोग गोल गोल ऐसे पीछे की तरफ घुमाते हैं. Got it? So when you will move ratches or knob, this spindle will also move backward or forward, and this anvil is fixed. So when a spindle is moved backward and forward, this can hold an object. Got it? So this is a locking screw. This one is a locking screw. Why locking screw is used? To get a more accurate reading. Okay, it's just like in a vernier caliper. Whenever you are locking that particular instrument, that this will give a more accurate reading. Now here is a frame. Frame, you can see that frame is used to hold a particular object. That is a frame only. Okay, now the thimble is used. What is the function of a thimble? To mark circular scale. Got it? In a thimble you can see that 40, 35, 30 it is written there. So graduated scale is marked over on thimble. What is sleeve? In a sleeve, to mark main scale and a baseline. That is the midline, that is called as reference line also. Okay, this line, that is called as reference line. In a sleeve, main scale and a baseline both are marked. What is main scale? Main scale, you can see that here 0 and so on, that are the values mentioned there. So ratchets and knob, the function of the ratchets on knob to advance the screw by turning it till the object is gently held between the stud and spindle. That is, anvil is also known as stud and this is spindle of the screw gauge. मतलब रैचेस का काम क्या होता है कि वो गोल गोल ऐसे उसको पीछे की तरफ और क्लॉक एंड एंटी क्लॉकवाइज उसका मूवमेंट कराता है रैचेस और नॉब, और उसको मूवमेंट कराने की वजह से ये स्पिंडल मूव करता है और ये ऑब्जेक्ट को होल्ड करता है. गॉट इट? सर्कुलर स्केल, that is a circular scale. A circular scale helps you to read the length correct up to 0.01 millimeter. 0.01 मिलीमीटर, मतलब सर्कुलर स्केल आपको इतनी करेक्ट रीडिंग तक के आपको मेजरमेंट करने के लिए देता है. 0.01 मीटर mm मीन्स 1/100. Got it? That means it has circular scale is having 100 division on it. So that is a original micrometer or a screw gauge I have taken, and that is for explanation. So in this explanation, same you can see that here anvil, spindle, sleeve, hardened edge. Hardened edge are at the corners or at the top of the anvil and spindle that are used to hold in particular object and to create a friction or to get a proper hold on an object. उस पर जो पकड़ आपको बनानी है वो उस पर एकदम अच्छी बनेगी. And you can see that here main scale 0 to 5 and 5 and so on. And I have to tell you, on main scale every reading is of 1 mm. Got it?
एवरी रीडिंग इज ऑफ 1 mm. दैट मीन्स 0 से आपका आया 1 2 3 4 5 6 7 8 तक आपको दिख रहा है, उसके आगे एंड सो ऑन आगे बढ़ेगा. And here is a circular scale. Circular scale is having 100 division on it. 100 division on it. Main scale is having 5 division and 1 division is of 1 mm. Clear? Now you can see that this line also, and that line is coming between 0 and 1. That line is coming in between 0 and 1. So if they are coming in between, so that इसको आधी कर रही है ये, और अगर ये आधी हो रही है so that will be what 0.5. भाई 1 का आधा क्या होता है 0.5. so the least count that is to be measured is 0.5 mm. Got it? मेन स्केल की जो रीडिंग होती है वो आपकी होती है 1 mm, फिर 2 mm ऐसे करके बढ़ती है, लेकिन ये जो नीचे की लाइन है वो इसके अगर मिड पे आती ही है तो इसकी जो यहाँ पे हमारे पास मेन स्केल की रीडिंग बन रही है वो बन रही है 0.5 mm. सो एंड ऑल द थिंग्स आई हैव डिस्क्राइब्ड फॉर दिस पार्ट. एंड कमिंग टू द नेक्स्ट पिक्चर. In the next picture you can see that circled one. A circled one is a enlarged view for you. ये क्या किया गया है, enlarge करके यहाँ पे दिखाया गया. अब enlarged view में आप लोग देख सकते हैं कि बस उसी स्केल को enlarge करके मैंने यहाँ पे दिखाया है. तो इस enlarged view में 0 से 5 जो मैंने अभी पीछे चीज़ बताई है वहीं पे दोबारा से एक्सप्लेन करूँगा. 0 से 5 और 5 के आगे ये जो वाली लाइन जा रही है that one is 6 ओके एंड 7, और इसके बीच में एक स्मॉल लाइंस जाती हैं. सो इन द नेक्स्ट पेज यू कैन सी द लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल इज 0.5 mm. That I have told you. Why the 0.5 mm? Because 0 to 1 and 0 to 1 this line is coming, this one line. Okay, so if this line is coming तो इसको आधी कर दे रही है, so that will be a 0.5 mm. And how many divisions you have taken? You can take 50 divisions. Okay, ये अलग अलग तरीके के बेटा स्क्रू के जो माइक्रोमीटर्स होते हैं, किसी में आपके 100 डिविजन्स भी होते हैं सर्कुलर स्केल में, किसी के 50 डिविजन्स भी होते हैं और किसी के 500 डिविजन्स भी होते हैं. इस बात को ध्यान से सुन लीजिए. अब मैं आपको बताऊं कि हमारे पास यहाँ पे जो स्केलिंग में मेज़रमेंट होती है वो कितनी होती है, 1 mm की होती है मेन स्केल में. मेन स्केल इज हैविंग अ 1 mm डिवीज़न. सो अगर 1 mm हमारे पास है और हमारे पास 100 डिविजन्स होंगे तो 1 by 100, और 1/100 से आप लोग को क्या मिलता है मालूम है ना, 0.01 mm. इफ this scale is having a 50 divisions, if this scale is having a 50 divisions तो 1 mm 1/50, और 1/50 से आप लोग को मालूम है क्या मिलता है यहाँ पे. सो 1/50 से तो आपको सिर्फ एक सिंगल रोटेशन के लिए मिलेगी वैल्यू. गॉट इट? अगर आप इस थिम्बल को, क्योंकि सर्कुलर स्केल है ना, इसको ऐसे गोल गोल घुमाते हैं तो यहाँ पे रीडिंग फिक्स करती है. तो अगर आप सिंगल रोटेशन कराते हैं, इफ द स्क्रू मूव्स बाई 1 mm इन 2 रोटेशंस, अगर आपके पास 100 डिवीजन्स होते हैं, मैं ध्यान से सुनिएगा बात को, अगर आपके पास इस सर्कुलर स्केल में 100 डिवीजन्स होते तो आपको खाली इसको एक बार घुमाना पड़ता. तो अगर एक बार घुमाते सो 1/100 दैट विल गिव यू 0.01 mm. अब आपके पास तो हैं 50 डिवीजन्स. 50 डिवीजन्स के लिए आप इसको, इसी सर्कुलर स्केल को गोल गोल ऐसे, जैसे इसी को 2 बार आपको घुमाना पड़ेगा. अब इसी को, इफ द स्क्रू मूव्स बाई 1 mm इन 2 रोटेशंस एंड इट्स सर्कुलर स्केल हैज़ 50 डिवीजन्स, देन द पिच ऑफ द स्क्रू विल बी 1/2 mm. द पिच ऑफ द स्क्रू इज 1/2 mm. 1/2 mm कैसे आए आपके पास, सुनिएगा. टोटल नंबर ऑफ आपके पास कितने थे यहाँ पे, 1 mm हमारे पास है, और यहाँ पे आप कितना, यहाँ पे डिवीजन्स हैं आपके पास 50 डिवीजन्स हैं आपके पास. सीधे से आप ये चीज़ समझ लीजिए कि आपके पास ये बन रहा था यहाँ पे 0.01 mm 1 mm के हिसाब से,
और यहाँ पे आपके पास उसका आधा हो जाएगा क्योंकि 50 डिवीजन है मेरे पास, तो दैट विल गिव यू 0.5 mm, 0.5 mm. सो द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू इज 0.5 mm. ठीक है, अब अगर हमारे पास, वेट अ मिनट, अगर हमारे पास 50 डिवीजन्स हैं तो हमारे पास जो पिच होगी, इसकी पिच के फॉर्मूले में हम लोग जब यूज़ कर रहे हैं तो मैंने बताया था पिच में हम लोग 1/2 लगाएंगे और हमारे पास आएगी पिच कितनी आएगी, 0.5 mm आई है. नाउ अगर हमारे पास पिच है 0.5 mm तो लीस्ट काउंट निकालने का भी हम आपको तरीका बताएंगे, वो फॉर्मूला आगे यूज़ होता है. तो अभी बता देता हूँ, लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला आप लोग कॉपी पे नोट किए हैं वो होता है पिच बाई टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल. पिच आपके पास कितनी है बताइए, पिच आपके पास है 0.5, अभी तो मैंने नोट कराई ना आपको, और आपके पास टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स कितने हैं, 50 डिवीजन्स हैं, और 0.5 बाई 50 अगर आप करेंगे यहाँ पे तो आपको कितना मिलेगा, दैट विल गिव यू 0.01 mm. और ये जो 0.01 mm है वो आपके 100 स्केल्स के डिवीज़न, सर्कुलर स्केल के डिवीजन से मैच कर रहे हैं. गॉट इट. अगर हम लोग 100 डिवीजन्स यहाँ पे ले रहे थे तो हमारे पास पिच कितनी थी, अगर हम लोग 100 डिवीजन्स ले रहे थे तो हमारे पास पिच कितनी थी, 1 mm, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कितना यूज़ हो रहा है स्क्रू का, एक राउंड में ले रहे हैं तो 1 mm का यूज़ हो रहा है, तो पिच हमारे पास कितनी हुई, 1 mm की. तो लीस्ट काउंट निकालने के लिए हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, लीस्ट काउंट के लिए पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन 100 थे, तो जिससे आपका 0.01 आया था. वहाँ पे आपके 0.05 से डिवाइड किया गया है. ओके, थोड़ा सा डीपली मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है आपको. नाउ हाउ टू फाइंड आउट द लीस्ट काउंट ऑफ अ माइक्रोमीटर और स्क्रू गेज. ओके, किस तरीके से फाइंड करते हैं, पहले तो पिच के बारे में जान लीजिए. पिच अभी मैंने बताया था, जब थिम्बल आपका, ओके, थिम्बल जिसपे आपका मैंने क्या बताया था, जिसमें सर्कुलर स्केल मार्क होती है, व्हेन थिम्बल कंप्लीट्स इट्स 1 रिवॉल्यूशन, मतलब एक चक्कर पूरा करके आता है, 0 से स्टार्ट होता है थिम्बल का रिवॉल्यूशन, और जब वो एक चक्कर पूरा कर लेता है देन स्पिंडल मूव्स इन एक्सियल डायरेक्शन, मतलब आगे की तरफ बढ़ेगा, ऑफ 0.5 mm. अभी मैंने बताया एक राउंड पूरा करने में कितना हमारे पास लग रहा है, 0.5 mm. ओके, वो क्या थी, पिच थी. अभी मैंने सॉल्व की थी 0.5 50 डिवीजन्स के लिए, 1 mm के लिए 1/2 करके 0.5 mm आई थी. इस 0.5 mm को वो हम लोग उसकी पिच बोलेंगे. अब आई कैसे, वही फॉर्मूला फिर से मैं बताता हूँ, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच बाई नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल. नाउ ग्रेजुएशंस ऑन थिम्बल, कितने हैं ग्रेजुएशंस आपके थिम्बल पे, मतलब लाइनें कितनी हैं, 50, तो 50 लाइन्स है हमारे पास. एंड पिच हमारे पास कितनी है, 0.05 mm. अभी आप लोग ने निकाली है, तो 0.05 बाई 50, अभी मैंने पीछे पिक्चर में इसको सॉल्व किया है 0.01 mm. सो याद रखिएगा, अभी जो माइक्रोमीटर यूज कर रहे हैं उसकी लीस्ट काउंट कितना है, 0.01 mm. ओके, नाउ let us learn how to take the reading on the micrometer. That is the formula, main scale reading plus thimble scale reading into least count. मतलब मेन स्केल रीडिंग आपकी जितनी भी आएगी और थिम्बल स्केल रीडिंग जितनी भी आएगी सर्कुलर स्केल पे, और लीस्ट काउंट को हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे. दिस पिक्चर इज डिस्क्राइबिंग यू द ऑब्जेक्ट होल्डिंग, मतलब इसमें देखिए ऑब्जेक्ट को होल्ड कर लिया गया है. जब हमने इस ऑब्जेक्ट को इसमें होल्ड किया है तो यहाँ पे ये कुछ मूव किया होगा. नाउ वी विल कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ दैट ऑल्सो. ओके, नाउ हियर यू कैन सी that is an enlarged view of that scale, this one, that is an enlarged view. Now you can see that after the fifth line, here is the fifth line. फिफ्थ लाइन के बाद कौन सी आ रही है, ये आ रही है सिक्स्थ. मैं उस पर पेन नहीं चलाऊंगा, दिखेगा नहीं. सिक्स्थ के आगे सेवन्थ है, लेकिन सेवन्थ से पहले नीचे एक छोटी सी ब्लैक लाइन आप लोग देख सकते हैं, ये लाइन. ओके, सो 5 6 तक गया, और ये ब्लैक लाइन, और मैंने आपको बताया था 6 और 7 को आधा कर रहा है ये ब्लैक लाइन, दैट मीन्स 6.5. फिर से बता रहा हूँ, ये हुआ 5, इसके आगे वाली लाइन 6,
उसके आगे 7 पे आ रहा है, लेकिन उससे पहले ये देखिए छोटी वाली लाइन मैच कर रही है, तो हमारे पास कितना हुआ 6.5. गॉट इट. अब 6.5 हमारे पास ये हो गया. Now, thimble scale reading, that means circular scale. Circular scale that has to be matched with the reference line. This one is a reference line. Got it? On reference line, which number is matching? That is 30th. Okay. Here you can see that they are describing you 6 and a point dot is there. मैंने पिछले में आपको इसको explain कर दिया. Now, here is the actual reading 6.8 mm. कैसे आई देखते हैं. दैट मीन्स मेन स्केल रीडिंग देखिए आपके पास कितनी आ रही है. मैंने बताया था 6 ही आई और 0.50 भी जुड़ेगी, क्योंकि नीचे वाली लाइन को जोड़ करके ये देखिए 0.50 आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं. नाउ थिम्बल स्केल रीडिंग दैट 30 इज मैचिंग. एंड अ लीस्ट काउंट अभी आपने निकाला 0.01. After solving these values, you will get 6.8 mm. That is how we can calculate the screw gauge measurement. Okay, that's all for this video. Thank you for watching.